Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna.
गजाननं भूतगणाधिसेवितां कपित्थजम्बो भयचारुहतम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कार्पण्यदोषो गतस्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यस्यान्निश्चितं रोहितम् शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासितार मनोरवीयान् समनुस्मरेभ्य सर्वस्य भागागमचिन्तरूप आदित्यवर्णं तमसः पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ नृसिंह सर्वा नुर्गांस्थिता अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं मां ब्रह्मध्यं न पुनस्तवादे पश्यामि विश्वेश्वरवीश्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तमन्तम् द्यावापृथिव्यो चिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽव्यन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मम्
अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलानि रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे सामे ऋषिकेशतरप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा कस्मात् तेन न मेरन्नात्मा गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपत्रे अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं विधानम् भित्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं ईशमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा न समीयदुक्तं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावसार्थमशक्तिदोषि विहाय शय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसमक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्यमेव पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो
लोकत्रयेत्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यम् एव पुत्रस् सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम श्री गीता जी का पाठ 18वां अध्याय श्लोक संख्या 51 से 60 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्तस्य रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत् वाक्कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमोच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यस्तासि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यविशदा पूर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् करिष्यसि। अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योष्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृते स्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपितः। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपितः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 17 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम स्वर्ग और नरक, यहाँ है स्वर्ग ऊपर बताते हैं, नरक पृथ्वी के भीतर बताते हैं। दक्षिण की तरफ मार्ग का जैसे बताते हैं। स्वर्ग है वो सुख भोग भूमि है और नरक है वो दुख भोग भूमि है। नरकों में वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, पृथ्वी के अंतर्गत भीतर है, ऐसा कहते हैं। नारायण 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 नारायण। भगवत गीता में आरंभी प्रकरण बनाया है जिसमें देह और देही का भेद बताया है। शरीर और शरीर ये दो चीज है। इस ज्ञान की सबके लिए आवश्यकता है। इस वास्ते सबसे पहले ये बताया 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोक है। इनमें ये बताया कि इसकी जरूरत है सबके लिए। स्वर्ग भी जाएगा तो शरीर छोड़ करके जाएगा ना, इस शरीर को साथ लेकर थोड़ा जाएगा। नरकों में जाएगा तो शरीर को ले छोड़कर जाएगा, 84 लाख में जाए तो शरीर को छोड़कर जाएगा। ज्ञान योग से मुक्ति प्राप्त करेगा तो शरीर छोड़कर के होगा। भक्ति योग से भगवत धाम में जाएगा तो शरीर छोड़कर के जाएगा। तो शरीर तो शरीर से अलग है। और भक्ति में भगवान का प्रेम होगा
तो शरीर के साथ थोड़ी मोह रहेगा। तत्व ज्ञान में स्थिति होगी तो शरीर के साथ थोड़ी मोह रहेगा। कर्मयोग से तत्व को प्राप्त करेगा तो शरीर के साथ थोड़ी अपनापन रहेगा। शरीर के साथ तो संबंध छोड़ना पड़ेगा। तो पीछे पहले ही बता दी ये बात सबके लिए उपयोगी है। सकाम निष्काम योगी, कर्मयोगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, सबके लिए। तो देह और देही का भेद है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। इस बात से सबसे पहले बताया है। ग्रंथों में आता है वे ज्ञान योग आखिरी चीज है, तो ये तो कठिन है, भगवान ने पहले क्यों कह दिया, ये बड़ी शंका है। तो आखिरी चीज तत्व ज्ञान है। वो तत्व ज्ञान में मुख्य विवेक है। तो विवेक की आवश्यकता सब जगह है। चलने फिरने, खाने पीने में, बैठने उठने में, व्यवहार करने में विवेक की आवश्यकता सबको है। इस वास्ते विवेक का वर्णन पहले है। और ये गीता की एक विलक्षण बात है। तो देह और देही के भेद से शुरू किया है। मान ये सबसे पहले आवश्यक चीज है। ये जो बताते हैं भाई ज्ञान योग तो ऊंची बात है, ऊंची नीचे कुछ नहीं है, सीधी सरल बात है। तो ये पढ़ाई के लिए ज्ञान योग ऊंची बात है, अनुभव के लिए पहली बात है। ये अनुभव के लिए ऊंचे नीचे नहीं है। इस बात से शास्त्रों में ज्ञान योग का वर्णन होता है तो इदंता से होता है, यहाँ अनंता से होता है। शरीर और शरीर का भेद चला है शुरू से यहाँ। वहां पर ऐसी बात आती है ज्ञान का अधिकारी कौन है, अधिकारी बताओ, ज्ञान का क्या संबंध है, बहुत 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 बातें ऐसे। फिर उसमें बताया अधिकारी होता है वो साधन चतुष्टय संपन्न होता है, फिर ऐसे हो। ये क्रम है ग्रंथों का। गीता का ये क्रम नहीं है। गीता का ये क्रम है और देह और देही इनका भेद है। इस वास्ते पहले प्रकरण में आत्मा, अनात्मा, ईश्वर, ब्रह्म, प्रकृति, माया शब्द नहीं आया। 20 श्लोक है 11 से 30 तक, इनमें ये शब्द नहीं आया। आत्मा अनात्मा का, ईश्वर का, ब्रह्म का, जीव का शब्द ही नहीं। तो इस तरह से जो बात बताई जाए वो अनुभव में आ जाती है। अनुभव में लाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें वो स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तत्व ज्ञान से स्वतंत्रता मिलती है। तो स्वतंत्रता कब मिलती है कि जड़ता की स्वतंत्रता न रहे, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की स्वतंत्र न रहे, वो है स्वतंत्रता। तो तत्व ज्ञान हो जाता है तो उसके पराधीन नहीं रहता। अरे पराधीन सुपने को सुपना ही, पराधीन को सुख मिलता नहीं। तो ये स्वाधीन तत्व है, स्वयं इसको प्राप्त कर ले। इसमें एक बात बताई जाती है, आप ध्यान देकर सुने। हम लोगों के पास में एक तो है परिश्रम, ये है वस्तु, मानो शरीर संसार आदि ये वस्तु है, और ये क्रिया है, ऐसी क्रिया। तो तत्व ज्ञान है वो क्रिया और व्यक्ति के अधीन नहीं है। करने से होगा ऐसा नहीं है, अथवा किसी की सहायता से होगा ऐसा नहीं है, कोई दूसरा कर देगा ऐसा नहीं है। स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं खुद को। इसमें दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है, ना किसी व्यक्ति की सहायता की जरूरत है, ना परिश्रम की जरूरत है। परिश्रम और व्यक्ति करोगे तो दूसरे का सहारा लेना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति के द्वारा ही ज्ञान होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता लेनी ही पड़ेगी। ऐसी किसी परिस्थिति से तत्व ज्ञान होगा तो परिस्थिति की अधीनता लेनी ही पड़ेगी। और किसी क्रिया से परिश्रम से होगा तो परिश्रम का आश्रय लेना ही पड़ेगा। ऐसे किसी परिस्थिति की आवश्यकता, ऐसी परिस्थिति में तत्व ज्ञान होता है तो परिस्थिति की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो ये दोष आता है। दूसरा ये बात है
कि तत्व ज्ञान होने में अपने आप को ही होता है, तो इसमें दूसरे का संबंध है, यही बाधक है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, ये तत्व ज्ञान में बाधक है। बाधक की सहायता से तत्व ज्ञान कैसे होगा? ये पर है वो। आप जो स्वयं है वो परमात्मा के अंश है, और शरीर है ये प्रकृति का अंश है। तो आप स्वयं अपने आप को जानना चाहते हो तो प्रकृति का सहारा छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना पड़ेगा उसका सहारा लेने से प्राप्ति कैसे होगी? तीसरी बात है, असत की सहायता से सत की प्राप्ति कैसे होगी? सत की प्राप्ति चाहते हो तो असत का त्याग होने से होगा। खूब ध्यान देने की बात है ये। उस तत्व की प्राप्ति सबको हो सकती है, अगर किसी परिस्थिति में ही होगी तो सबको प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सब की परिस्थिति एक होती ही नहीं। किसी बल से प्राप्ति होती, बल सबके एक समान होता ही नहीं। देखो एक मर्म की बात कही जाती है, ध्यान दें। हम लोग परिश्रम करने में, परिस्थिति में, वस्तुओं में, शरीरों में हम अलग अलग होते हैं, परंतु इनका त्याग करने में हम सब एक होते हैं। जिसमें सब एक होते हैं उसी के द्वारा प्राप्ति होती है, वो सबके सब उसके अधिकारी है। और किसी परिस्थिति विषय में, किसी व्यक्ति विशेष में, किसी देश काल आदि में जिसकी प्राप्ति होती है उसमें सबके सब स्वतंत्र है और सबको प्राप्त नहीं हो सकती। तत्व ज्ञान सबको मिलना चाहिए। तो सब हम किसी एक कहाँ होते हैं, ये बात एक मार्मिक बताता हूँ। जैसे करने में हम दो बरोबर नहीं हो सकते, सबकी क्रिया बरोबर नहीं, सबकी योग्यता बरोबर नहीं, सबका बल बरोबर नहीं, सबके पास वस्तुएं बरोबर नहीं, तो इनके रहित होने में सब एक हो जाते हैं हम। जैसे ध्यान दो, खास बात बताता हूँ। जागृत में और स्वप्न में हम सब अलग अलग होते हैं, पर सुषुप्ति में हमारे क्या भेद होता है बताओ? गहरी नींद सब आ जाए हमारा आपको, तो उसमें बरोबर होते हैं कि नहीं? क्या फर्क रहता है? कौन छोटा बड़ा, आगे पीछे, अच्छा मंदा कौन होता है? मानो संसार के संबंध रखने में तो हम अलग अलग हैं, परंतु इसका संबंध छोड़ दें तो हम सब एक हो जाते हैं, और सब हमें एक होते हैं, वो वही ज्ञान होता है। अलग अलग ज्ञान नहीं होता है। तत्व ज्ञान होने पर एक तत्व में स्थिति होती है सबके। ऐसे नहीं ब्राह्मणों का ज्ञान दूसरा होता हो, क्षत्रियों का दूसरा हो, वैश्यों का, शूद्रों का, ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थों का, गृहस्थों का, सन्यासियों का ज्ञान अलग अलग होता हो। तत्व ज्ञान ये बात नहीं, भेद नहीं है उसमें। तो भेद है वहां तक, ये अज्ञान है। इस भेद से ऊंचे उठने पर तत्व ज्ञान होता है अभेद का। तो अभेद ज्ञान में सब एक होना चाहिए, सब एक होना चाहिए अभेद ज्ञान में। तो सब एक करने में हम एक नहीं होते, न करने में सब एक होते हैं। बोलने में दो आदमी बरोबर नहीं होंगे, पर न बोलने में क्या फर्क होगा? एक विद्वान है, एक मूर्ख, चुपचाप बैठे, क्या फर्क होगा? बोलने में फर्क पड़ता है। ऐसे काम करने में फर्क पड़ेगा। कोई बढ़िया करता है, कोई अच्छा करता है, किसी को करना आता है, किसी को नहीं करना आता है। सब एक नहीं हो सकते। न करने में क्या फर्क पड़ता है? सुनने में बरोबर तो सब समझते नहीं बरोबर, न सुनने में क्या फर्क पड़ता है? देखने में बरोबर सब नहीं हो सकता। किसी की आंखें तेज है, किसी की मंदी है, किसी को ठीक दिखता है, कम दिखता है, पर न देखने में क्या फर्क है? तो संसार के अभाव में सब एक हो जाते हैं, और संसार के भाव में अलग अलग होते हैं। तो तत्व ज्ञान संसार से अलग होने में होता है, वह सब हम एक हो जाते हैं। तो तत्व ज्ञान के लिए बाहरी परिस्थितियों की, व्यक्ति की, वस्तु की, क्रिया की आवश्यकता नहीं है। इनसे रहित होने की आवश्यकता है, जिसमें हम एक हो जाते हैं। तभी ज्ञान के अधिकारी सब हो, सबको ज्ञान हो सकता है।
अगर क्रिया हो तो बरोबर क्रिया नहीं, योग्यता बरोबर नहीं, बल बरोबर नहीं, बुद्धि बरोबर नहीं, ये योग्यता बरोबर नहीं है, तो ऐसा ज्ञान हो तो किसी किसी को होगा, सबको नहीं होगा। तत्व ज्ञान सबको होना चाहिए। तो सबको तत्व ज्ञान तभी हो सकता है कि जब हम विषमता के देश का ही त्याग कर दें, विषमता की अवस्था का ही त्याग कर दें, विषमता की परिस्थिति का भी त्याग कर दें, विषमता से छोड़ समता में आ जाए तत्व की प्राप्ति होगी। तो लिखा है साहब, यही तेज सर्गो ये शाम सामने स्थित माना। इन लोगों ने परमात्मा को प्राप्ति कर ली तो किसने कर ली कि जिन्होंने जिनके मन समता में स्थित हो गया। ये शाम मन सामने स्थितम तई यही सर्ग जीता। जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन पुरुषों ने इस जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, संसार के ऊंचे उठ गए। तो संसार से ऊंचे उठते हैं ना, तो समता में ऊंचे उठते हैं, विषमता में कैसे ऊंचे उठेंगे? एक पटा हुआ है, एक अपट है, दोनों बरोबर कैसे होंगे? परंतु नहीं बोले, चुप रहे, उसमें बरोबर ही होंगे। दो क्या होगा उसमें? अपट तो एक ही होंगे ना, पटे हुए में फर्क होगा। मनुष्य संसार की परिस्थिति लेकर के सब एक नहीं हो सकते, और संसार की परिस्थिति अलग होने पर दो हो ही नहीं सकते, भेद हो ही नहीं सकता। तो मन साम्यावस्था में स्थित होता है तो निर्दोषं ही समम ब्रह्म, ब्रह्म है वो निर्दोष और सम है। तो समता में उसे प्राप्ति होती है। साम्य परमात्मा का स्वरूप है। निर्दोषं ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। तो निर्दोष तो संसार के अभाव में ही होंगे, संसार के भाव में निर्दोष कैसे होंगे? एक कैसे हो जाएंगे? इस वास्ते जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हुआ है उन लोगों ने संसार को जीत लिया, क्योंकि निर्दोष और सम है, ब्रह्म है। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। मन निर्दोष और सम हुआ, प्राप्ति हो गई। तो परमात्म तत्व का ज्ञान, जिसको कहते हैं ज्ञान के सदृश कोई चीज नहीं है, तत्व ज्ञान हो जाए फिर जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा। ऐसे किसी परिस्थिति से, किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से नहीं होगा। वो आपको खुद को होगा, अपने आप को होगा। इस वास्ते किसी वस्तु की और किसी क्रिया की जरूरत नहीं है। तत्व ज्ञान इसे ऊंचा उठने के लिए है। अब उस तत्व ज्ञान की योग्यता प्राप्त करने के लिए साधन है सब। उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सके, हम क्रिया और पदार्थों से रहित हो सके, उसके लिए साधन है। उसके लिए अलग साधन है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ये करो, अष्टांग योग है, लय योग है, राज योग है, मंत्र योग है, अनासुति योग है, कई योग है, वे अलग अलग है। तो उसके लिए अलग अलग होते हैं, और तत्व ज्ञान के लिए अलग अलग नहीं है। तत्व ज्ञान तो क्षमता में है, सबको प्राप्त हो सकता है। तत्व ज्ञान स्वरूप एक है सबका। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान ने कहा कि मेरा अंश है, तो भगवान के अंश में क्या फर्क है? वो कुछ ज्यादा कम होता है, किसी में ज्यादा है, किसी में थोड़ा है, किसी में और ज्यादा है। ये नहीं, सब पर है। भगवान की कृपा भी सब पर मोरी बराबर दया, सबके परमात्मा एक। तो क्रिया और परिश्रम और वस्तु व्यक्ति किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है, किसी वस्तु के अधीन नहीं है, किसी क्रिया के अधीन नहीं है। इन सबसे अतीत तत्व है। इस वास्ते जो चाहता है उसी हो जाएगा। सब के सब तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वे करना चाहे न करना चाहे, बात एक अलग है। करना चाहते ही नहीं, कैसे हो जाएगा? कैसे जाएगा? कहीं जाना चाहे तब ना। उस तत्व को चाहते ही नहीं, भोगों को संग्रह को चाहते हैं, तो कैसे मुक्ति हो जाएगी? तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा?
केवल चाहना। तो पारमार्थिक मार्ग में बाहर की वस्तुओं की जरूरत नहीं है, भीतर की लगन, भीतर की असली लालसा, अच्छी चीज चाहना, लगन, वो हो जाए। लगन लग जाए उस तत्व की प्राप्त कैसे हो, क्या करूं, कैसे करूं, हो जाएगा। वो योग्य है कि अयोग्य है इस बात नहीं है, भीतर की लगन लग जाएगी तो वो पात्र हो जाएगा। पापी से पापी, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा सब हो जाएंगे। अरे भीतर की लगन नहीं है तो बड़े पुण्यात्मा को भी तत्व ज्ञान नहीं होगा, तो चाहते ही नहीं कैसे हो जाएगा। और अपचेदिशी पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतमा, पापी से पापी अत्यंत पापी हो वो सर्वज्ञ ज्ञान ज्ञान हो जाए। उसको भी लालसा होनी चाहिए, उसकी चाहना होनी चाहिए, पात्रता आनी चाहिए। ऐसे भक्ति में, ऐसे कर्मयोग में पारमार्थिक साधना जितनी है सबकी सब केवल इच्छा पर निर्भर करती है। और संसार की चाहनाएं इच्छा भी हो और कार्य क्रिया भी करे और प्राप्त होगा, तीन मिलती तो होता है। जैसे धन की प्राप्ति आप चाहते हो तो धन प्राप्ति की इच्छा भी होनी चाहिए और धन प्राप्ति के लिए उद्योग भी करना चाहिए। और दोनों करने पर प्राप्त हो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। जाते हैं बाजारों नफे के लिए, हो जाता नुकसान, घाटा हो जाता है। तो प्राप्ति की मुख्यता है उसमें, तत्व ज्ञान में प्राप्ति की मुख्यता नहीं है, क्योंकि किसी क्रिया का फल नहीं, कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल होता है प्राप्त। ये तो सबको प्राप्त है, सब प्राप्त कर सकते हैं, सबका अधिकार है। कैसे ही कर्म हो, कैसे ही हो, आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस वास्ते इसमें केवल इच्छा, चाहना केवल, पर चाहना केवल केवल चाहिए। केवल केवल क्या? केवल इच्छा केवल चाहिए। दो केवल का तात्पर्य हो यार, मानो भगवान की इच्छा हो उसके साथ दूसरी इच्छा न हो, दूसरी इच्छा होगी तो केवल इच्छा नहीं रहेगी। केवल इच्छा केवल ही एक पारमार्थिक इच्छा है, उसके साथ धन मिलेगा, मान मिलेगा, आराम मिलेगा, कुछ बढ़ाई मिल जाए, कुछ भोग मिल जाए, ये इच्छा नहीं, केवल चाहना। इसमें क्रिया की, पदार्थों की, प्रारब्ध की, कर्मों की कोई आवश्यकता नहीं, जो चाहे सो ले लो। जैसे कहते हैं राम लड़ी चौड़े पड़ी सो कोई खेलो आए, दावाना संत दास जीते सो ले जाए। जब भगवान के नाम का जब खरब करो, जाट बजो, गुजर बजो, भावे बजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम में सबका उनका शीर। ऐसे आत्मज्ञान में सबका शीर है, सबका हक लगता है, सबका अधिकार है, जन्मजात अधिकार है, सब प्राप्त कर सकते हैं, छोटे बड़े अच्छे बड़े सब। केवल लालसा, और केवल केवल ही होनी चाहिए। केवल परमात्मा की हो तो केवल परमात्मा की हो, और लालसा नहीं चाहिए। यही भगवान ने भक्ति में कहा है, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान की एक आदत है, एक स्वभाव है, उस आदत को, स्वभाव को बाण करे, बाण पड़ गई छोकरे को, बाण पड़ गई ऐसे, तो एक बाण करुणा निधान, भगवान की बाण है, आदत पड़ी हुई है, एक स्वभाव है, एक बाण करुणा निधान की। क्या है कि सो प्रिय जाके गति न आन की, जिसके दूसरे को कोई सहारा नहीं है वो भगवान को प्यारा लगता है। तो भक्ति में ही ऐसा ही है, तत्व ज्ञान में भी ऐसा ही है, योग में ही ऐसा ही है, कर्म योग में भी कोई इच्छा नहीं चाहिए। कोई इच्छा साथ में कामना होगी तो कर्म योग सिद्ध नहीं होगा। तो अपने कल्याण में दूसरे की जरूरत नहीं है, दूसरे की इच्छा है, ये ही बाधक है। ये निष्कर्ष निकला। इतने मेरे कहने व्याख्यान का तात्पर्य क्या निकला कि चाहे आप ज्ञान चाहें, चाहे भक्ति चाहें, योग चाहें, स्वयं ही आ चाहे तो हो जाएगा, दूसरे के सहारे से नहीं। युक्ति है, उपाय है, ये दूसरे से पूछ लो, परंतु प्राप्त अपने आप को करना पड़ेगा। जैसे भूख लगी है तो भोजन खुद को ही करना पड़ेगा, देने वाला कोई हो जाएगा, कोई कुछ दे देगा, कोई कुछ दे देगा, ये बात अलग है, पर भूख तो खुद खाने से मिटेगी। किसी की सहायता मिट जाए, किसी आदमी से मिट जाए, किसी वस्तु से मिट जाए,
मिटेगी वो भोजन करने से मिटेगी। इस तरह से उस तत्व को प्राप्त करना स्वयं को पड़ेगा, स्वयं को अगर रखना होगा। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, क्या कर रहे हैं? बहुत ठीक है, तो दर्शन से हो जाएगा। तो दर्शन भी तो स्वतंत्रता से होता है, आप चाहोगे होगा। देखो आप चाहे बिना गुरु ज्ञान महात्मा ग्रंथ कोई नहीं कर सकता। गुरु कर सकते तो गुरु को आप मानोगे, गुरु बनावेगा आपको। गुरु की कृपा से होता है। गुरु की कृपा मानो तो गुरु पहले आप मानोगे, अथवा गुरु कहेगा मेरे को मान, मैं गुरु हूं, तुम चला हो। मानो गुरु जी चेला बनाएगा कि चेला गुरु बनाएगा। गुरु बनाने में चेले की स्वतंत्रता है, गुरु जी की स्वतंत्रता है। किसी मार्ग में जाओ आप, ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, किसी में ही अपना उद्धार चाहते हो तो स्वयं का उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम, अपना आप उद्धार करे। गीता में आया साहब क्या कहें? भगवान के दर्शन श्रेष्ठ है या तत्व ज्ञान? भगवान के दर्शन श्रेष्ठ है या तत्व ज्ञान? हाँ तो भगवान दर्शन करो तो तुम करोगे, कराएंगे भगवान दे करेंगे। मैं कहूँ आरंभ में आपको ही काम पड़ेगा ना। कुछ है कि तत्व ज्ञान श्रेष्ठ है या भगवान का दर्शन? भगवान का दर्शन है बाद में तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान के बाद। तो भगवान दर्शन हो गया, तत्व ज्ञान बाद दर्शन दोनों में है। तत्व ज्ञान के बाद दर्शन हो सकते हैं, दर्शन के बाद तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञान है दर्शन से हो जाता है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुरु खानी, ये तात्पर्य है उसका। मानो भक्ति मिलने पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ये तात्पर्य भक्ति की महिमा तात्पर्य है। मानो भक्ति पहले चाहिए कि नहीं, और भक्ति पहले आप करोगे कि भगवान करेंगे आपकी? बताओ। भगवान भक्ति फिर करेंगे, पहले तो आपको करनी पड़ेगी। कहीं जाओ खुद के कैमरा कैसे होगा? खुद के करने की तात्पर्य मेरे था। कहावत है कि आप मुंह में स्वर्ग कौन जाए, अब मरे को नहीं स्वर्ग जाए, बिना मरे चला जाएगा, मरना पड़ेगा। ऐसे खुद को करना पड़ेगा, खुद को। मेरी बात की तरफ ध्यान कम दिया आपने, और कोई बोलो पूछो, मेरी बात को ध्यान दिया ही नहीं। मानो खुद को अगर ही चलना पड़ेगा, दूसरे से काम नहीं होगा। कि भगवान के दर्शन हो तो भगवान दूसरा नहीं है, भगवान अपना है। संसार है दूसरा, प्रकृति कार्य है दूसरा। दूसरे की सहायता से नहीं होगा।